class 3rd. Welcome to your English class, बच्चे. So children, today we are going to discuss the poem number 2 of your Roots and Wings, that is Evening. Alright, this poem is given on your page number 32, as you can see here. Come to the page number 32 of your Roots and Wings. Alright, so let's start the poem. At first, let me tell you that who has written this poem. The name of the poet who has written this poem is Thomas Miller. Okay, this poem is written by Thomas Miller. Yes, and he is very famous for his beautiful ideas and language. Okay, all right. Okay, now children, as you can see, the name is given Evening. The name itself is representing that it is talking about the sunset. Evening means what? शाम का समय है ना. इट मीन्स जब सनसेट होता है तब का टाइम है ना. तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, इससे साफ हमें पता चल रहा है कि ये जो पोयम है किसके बारे में है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द सनसेट. ऑलराइट. See children, there are 6 stanzas in this poem, as you can see here. And do you know what is a stanza? At first let me tell you what is stanza. Okay, जैसे आप स्टोरी में पढ़ते हो पैराग्राफ होते हैं ना, वैसे पोयम में उसमें पैराग्राफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? स्टैंजा बोलते हैं. ऑल राइट. The spelling of the stanza is that is STANZA, stanza. All right. Okay. See, now let's start the stanzas here. See, this is the first one. The from the word the से लेकर जो fly है ना, this यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका this is your first stanza. Okay. And then this is your second stanza. And then this is your third stanza. All right. And 3 others are in the next page. Let me show you. Come to the next page. Yeah, see, 3 stanzas are given here. See, this is one, this is your 4th one, this is your 5th stanza, and the last one is your 6th stanza. All right, so how many stanzas are there? There are 6 stanza. पता चल गया आप लोगों को स्टैंजा किसे कहते हैं. स्टैंजा यहाँ इस पोयम में कितने स्टैंजाज है अब तो आप बता सकते हो ना. ऑल राइट. ओके, नाउ लेट्स रिसाइट द पोयम. कम टू द फर्स्ट स्टैंजा. The day is past, the sun is set, and the white stars are in the sky, while the long grass with dew is wet, and through the air the bats now fly. Now come to the next stanza. The lambs have now lain down to sleep, the birds have long since sought their nests, the air is still and dark and deep, on the hillside the old wood rests. Yet of the dark I have no fear, but feel as safe as when it's light, for I know God is with me there, and He will guard me through the night. For God is by me when I pray, and when I close my eyes to sleep, I know that He will with me stay, and will all night watch by me keep. For He who rules the stars and sea, who makes the grass and trees to grow, will look on a poor child like me, when on my knees I to him bow. He holds all things in his right hand, the rich, the poor, the great and small. When we sleep or sit or stand, he is with us, for he loves us all. So children, this was your poem. Now moving to the explanation of this poem, coming to the first stanza. See children, in the first stanza the poet is drawing the picture of falling of the evening. Okay, he is showing the picture of the falling of the evening. It means it is the time of sunset. Sunset जब इवनिंग होता है तो क्या होता है? सनसेट होता है ना. और आपके पोएम का नेम ही है इवनिंग. ऑल राइट. ओके, सी इन द फर्स्ट stanza the poet is saying that the day has passed away and the sun has set. Okay, and what we used to do after the sunset, we used to take rest, we used to sleep at night. All right. And what happened at night? As we know that the after sunset the stars which are in white color, जो हमें stars दिखते हैं white color में, what they used to do, they used to appear in the sky. वो कहाँ appear हो जाते हैं? sky में appear होते हैं night में. क्या आपको दिन में तारे दिखते हैं या रात के टाइम में? Obviously night में दिखते हैं ना. Yeah. Then here the same thing is happening in the poem also. Okay, the stars are appearing in the sky after the sunset. Okay. Again the poet is saying that the long grasses which are wet, and how are they wet? They are wet with the dew which are dropped. जो dew गिरते हैं रात के टाइम में बूंदे, उससे क्या हो गए? वो गीले हो गए, वो भीग गए. Okay, they are wet. Okay. In the night the bats are flying in the air. Here the poet is saying that जो bats है, it means what? It means चमगादड़.
बैट्स का मतलब होता है चमगादड़। वो क्या करते हैं, दे यूज़ टू स्लीप इन द डे टाइम। वो सोते कब है, डे टाइम में, दिन के टाइम में, और रात के टाइम में वो जागते हैं। आपको पता है ना ये चीज़, ये फैक्ट पता है ना आपको, या? और वो क्या करते हैं, जब अगर वो जाग रहे हैं तो क्या करेंगे रात के टाइम में, दे विल बी फ्लाइंग इन द एयर। So here again, the poet is saying that the bats are flying in the air. All right. Now in the second stanza, the poet is talking about the creatures, है ना, such as lambs, birds. इनके बारे में ये बात कर रहे हैं. As you can see here, the poet is describing what the creatures. See, the picture of lamb is given. ये है ना lamb, देखिए सो रखे हैं ये सारे, है ना. Okay. Here the poet is saying that what he's saying that lambs are now going to sleep because it's the night time, है ना, रात में ऐसे भी सभी सोते हैं. एंड द बर्ड्स आर फाइंडिंग देयर नेस्ट टू स्लीप. और बर्ड से वो क्या कर रहे हैं, वो सोने के लिए अपनी नेस्ट ढूंढ रहे हैं. Now in the next stanza it is described that the darkness is fearful. What is shown in the next stanza, that darkness is fearful, and being darkness, the poet is not afraid of darkness. डार्कनेस है, अंधेरा हो रखा, फिर भी जो हमारे पोएट है वो क्या है, वो अंधेरों से नहीं डर रहे. बिकॉज ही इज श्योर दैट द गॉड इज़ ऑलवेज विथ हिम. अगर किसी को ये चीज़ होता है, बिलीव होता है गॉड पर कि नहीं, गॉड हमें हमेशा सेव करेंगे, हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर उनको कभी डर नहीं लगता. इन द सेम वे हेयर द पोएट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस जस्ट बिकॉज ही इज़ श्योर दैट गॉड इज़ ऑलवेज विथ हिम. ही Here the poet is saying that the God looks after all his creatures, whether they are poor or rich, great or small, है ना. चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या चाहे वो ग्रेट हो या स्मॉल हो, बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो, गॉड क्या करते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, सबको इक्वली सेव करते, प्रोटेक्ट करते हैं, सबको इक्वली लव करते हैं. ऑल राइट. ही लव्स इक्वली द रिच, द पुअर, द ग्रेट एंड द स्मॉल. जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो गॉड है सबको इक्वली लव करते हैं. देयरफॉर वी शुड आल्सो लव द अनदर एंड शुड नॉट हेट टू एनी वन, है ना बच्चों. तो हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे गॉड हमारे साथ इनइक्वलिटी नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते, तो हमें भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए, हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, है ना. एज यू कैन सी हियर अ चाइल्ड इज़ प्रेइंग, है ना. देख सकते हो यहाँ चाइल्ड, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, वो प्रे कर रहा है गॉड से, इज प्रेइंग टू गॉड, राइट. या. एंड ही इज सेइंग दैट गॉड इज़ एवरीवेयर एंड ही यूज टू प्रोटेक्ट अस. जो गॉड है वो क्या है, चारों तरफ है ना, और वो हमें क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और वे हमें, ही ऑलवेज यूज टू वॉच अस, और गॉड हमें हमेशा देखते रहते हैं. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा इट इज़ शोन दैट जो गॉड है वो क्या करते हैं, वो सारे ही रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपको पता ही है ना कि गॉड जो है वो क्या करते हैं, सारे वर्ल्ड पर रूल करते हैं, चाहे वो स्टार्स हो, सी हो, चाहे जो भी हो, ट्रीज़ हो, सब सब किसके कंट्रोल में, दे आर ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड, है ना. सी, in the fifth stanza it is shown that everything is under the control of God and he looks after everything. जो God है वो सब चीज़ पर ध्यान देते हैं. और क्या करते हैं गॉड, वो हमें हम जैसे बच्चों के, पोएट बोल रहे हैं, द हेयर द पोएट इज़ अ स्मॉल बॉय. ओके. यहाँ जो पोएट है वो एक छोटे बच्चे बनकर बात कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो गॉड है वो क्या करते हैं, हम जैसे पुअर बच्चे, मतलब हम जैसे बेचारे बच्चों की, छोटे बच्चों की वो हेल्प करते हैं. और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा उनको थैंक करना चाहिए, हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए. वी शुड बो करना इन द सेंस व्हाट, हम जब झुकते हैं तो इसका मतलब है हम गॉड को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं कि हम ये शो कर रहे हैं कि हम उनको अपना थैंकफुल शो कर रहे हैं, है ना. हम उनको थैंक यू कहते हैं इस तरह से उनके आगे झुककर. ऑल राइट. या. In the last stanza, the poet is saying that he holds all things in his right hand. जैसा कि ये मैंने बता रखा है कि सब कुछ गॉड के हाथों में होता है ना. हमारी जो लाइफ है, इवन हम जो ह्यूमन बींग्स है, हमारी लाइफ भी किसके कंट्रोल में है, गॉड के कंट्रोल में है. गॉट इट. और इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर जितने भी, आइदर दे आर रिच और पुअर, दे आर ग्रेट और स्मॉल, सबकी जो लाइफ है, सबकी जो भी डेस्टिनी है, वो किसके हाथों में, किसके कंट्रोल में है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड. वो सब कुछ गॉड के हाथों में है ना. और जो गॉड है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. ही ऑलवेज यूज टू विथ अस. हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ होते हैं. गॉट इट. ही लव्स अस ऑल, मीन्स जो गॉड है वो हम सभी से इक्वली लव करते हैं. ही लव्स इक्वली द रिच, द पुअर, द ग्रेट एंड द स्मॉल. वो सबसे इक्वली प्यार करते हैं. वो कभी भी
इनइक्वालिटी नहीं करते इस तरह से। सो वी शुड ऑलवेज लव टू एवरीवन, है ना। ऐसा नहीं कि हम कुछ लोगों को प्यार करें कुछ लोगों से नफरत करें, नहीं, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। सो वी शुड नॉट हेट टू एनीवन, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी से कुछ होती भी है, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाती है, कुछ दिनों के बाद आप उसे क्या करो, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, ओके। एंड देन फिर से आप फ्रेंडशिप कर लो और फिर से अच्छे से एक दूसरे के साथ लव शेयर करो, प्यार करो एक दूसरे को, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़ते रह जाए, नहीं, इट शुड नॉट हैपन। देन ओनली देर विल बी पीस एंड लव एवरीवेयर, तभी हमारे चारों तरफ क्या रहेगा, शांति रहेगी और लव रहेगा, पीस और लव रहेगा, है ना। एंड गॉड विल बी ऑल्सो हैप्पी, और ये देख कर क्या है होगा, गॉड भी खुश होंगे, अरे वाह, जो हमारे ह्यूमन बींग्स है जिसे हमने बनाया है वो क्या एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे, दे आर लिविंग विथ लव, है ना। तो वो गॉड भी क्या होंगे, वो भी खुश होंगे। गॉट इट। So children, this was the poem, and children, this is the first part of the poem, and in the next part I will explain the exercises, okay. So have a good day, bye bye, take care.